जुमा का दिन बहुत कीमती दिन है। ये जुमा का दिन गरीबों का हज के दिन भी बताया गया। ये जुमा का दिन ईद का दिन से भी बेहतर दिन बताया गया। ये जुमा का दिन आसमान का नीचे जमीन का ऊपर सबसे बेहतर दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه صدق الله العظيم. محترم حاضرین، محرم مہینہ کا آخری جمعہ ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اللہ کا دربار میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دنیا کا تمام ویستتا سے فارغ کر کے اللہ کا گھر میں جمعہ نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ جمعہ نماز ادا کرنے کا اور جمعہ کا پہلے دن کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کچھ بات سننے کا توفیق عطا فرمایا، اس لیے شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ۔ ایک بار درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین، ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہو گیا، لیکن ہمارا ساتھ ساتھ میں ہمارا بہت بھائی لوگ ہیں جو لوگ ابھی تک مسجد میں نہیں آ پائے۔ ہم لوگ اللہ کے پاس دعا کرتے ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وقت پر مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ بھائی لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے جو بھائی لوگ بیماری لے کے ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ پایا، اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ میرے بھائی، جمعہ کا دن بہت قیمتی دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن غریبوں کا حج کے دن بھی بتایا گیا۔ یہ جمعہ کا دن عید کا دن سے بھی بہتر دن بتایا گیا۔ یہ جمعہ کا دن آسمان کا نیچے زمین کا اوپر سب سے بہتر دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جمعہ کا دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو اتنا مہربانی کر کے یہ جمعہ کا دن دیا، لیکن یہ جمعہ کا دن کا جو احترام ہے ہم لوگ کیا کرتا ہے یہ جمعہ کا دن کا، یہ جمعہ کا دن کا فضیلت کو ہم لوگ کیسا ادا کرتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن جتنا بہترین دن ہے اتنا خوفناک دن بھی ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق ہم لوگ کو معلومات ہوتا ہے کہ یہ جمعہ کا دن قیامت آنے والا ہے۔ اس لیے حدیثوں کا مطابق ہم لوگ کو معلوم پڑتا ہے کہ جمعہ کا دن جنات اور انسان چھوڑ کے باقی جتنا مخلوقات ہے سب اللہ کا ذکر میں ویست رہتا ہے اور دل کے اندر خوف رہتا ہے کب قیامت کا حکم آ جائے، سوا انسان اور جنات کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ آج ہم لوگ ادھر جتنا آدمی لوگ ہیں، ہم لوگ کوئی آدمی آج یہ سوچ کے آیا کہ شاید آج قیامت ہو سکتا ہے، ایسا کوئی سوچ کے آیا؟ ہم لوگ کوئی سوچ کے نہیں آیا، کیونکہ ہم لوگ کو اس کا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم لوگ کو اس کا کوئی قدر ہی نہیں ہے، ہم لوگ کو اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ کو اس کا خیال ہوتا تھا تب ہم لوگ اللہ کا خوف سے مسجد میں آ کے وقت پر حاضر ہو جاتا تھا۔ لیکن میرے بھائی، جمعہ کا دن ہم لوگ کو چھٹی کا دن ہوتا ہے اور وہی جمعہ کا دن ہم لوگ کو سب سے زیادہ ویست بھی ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ
ज्यादा काम में लेके फजूल का काम लेके हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह हम सबको ये जुमा का जो इज्जत है, जुमा का जो फजीलत है वो पूरा अदा करने का तौफीक अता फरमाए। हम लोग पिछला हफ्ता बात किया था ईमान का बारे में। जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। कुरान से जो दावा सबसे पहले हम लोग को मिला वो है ईमान का दावा। आप सबसे पहले ईमान लाएगा तब आपको ये अल्लाह, रसूल, किताब, दुनिया, आखिरत ये सबके ऊपर विश्वास आएगा। अगर आपके पास ईमान ही नहीं है फिर आपका ये सब विश्वास कुछ फायदा नहीं है। आपका ये सब विश्वास फायदा नहीं है। ईमान वाला लोग मरने की बाद दफना जाता है और बेईमान लोगों को डिफरेंट करके वो लोग किसी को जला देता है, किसी को ऐसा। लेकिन एक ईमान वाला लोग जब मर जाता है उसको कितना इज्जत के साथ, कितना एहतराम के साथ, कितना प्यार के साथ, कितना मोहब्बत के साथ उसको विदा देता है। ईमान अल्लाह और रसूल का पास से आया हुआ एक ऐसा एक चीज है जिसको हम लोग को खाली नमाज और रोजा रखने से वजह से ईमान मजबूत नहीं होता है। अल्लाह का दिया हुआ दुनिया में जितना हुकूम अहकाम है सब कुछ मानने का नाम ही ईमान है। सब कुछ पूरा करने का नाम ही ईमान है। अभी मैं एक चीज मानेगा दूसरा नहीं मानेगा, ये करेगा ये मेरे को अच्छा लगा, ये करेगा ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा इसलिए मैं ये नहीं करेगा, इसको ईमान नहीं बोला जाता। इसको ईमान नहीं बोला जाता। हम लोग जब बोलता है आमन तो बिल्लाह, हम लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और मलाइकतिही किसके ऊपर, ये फरिश्तों के ऊपर भी हम लोग ईमान लाया। अल्लाह का फरिश्ता जो है उसको ऊपर भी हम लोग ईमान लाया। और कुतुबिही जितना किताब अल्लाह ने भेजा, अल्लाह कौन सा किताब भेजा, कुरान हमारे लिए भेजा। कुरान किस लिए भेजा, हुदल लिल मुत्तकीन, किस लिए, ये मुत्तकी वाला विश्वास करने वाला जिसके पास अल्लाह का ऊपर ईमान है, जो अल्लाह को विश्वास करता है, कुरान उसका हिदायत के लिए भेजा हुआ है। और रसूल ही अल्लाह का भेजा हुआ जितना रसूल है, नबी है, सबको ऊपर ईमान लाना। हम लोग जब वो लोग के ऊपर भी ईमान लाएगा तब हमारा ईमान बढ़ते जाएगा। जैसे हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह का फरिश्ता के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह का भेजा हुआ किताब के ऊपर ईमान लाया, और मलाइकतिही और कुतुबिही और रसूलिही, रसूल के ऊपर भी ईमान लाया। लेकिन वल क़दरि खैरिही, इसके ऊपर ईमान लाने के लिए हम लोग को थोड़ा मुश्किल है। इसका ऊपर ईमान लाना हम लोग को थोड़ा मुश्किल है। ये कौन सा है, वल क़दरि खैरिही, मेरा तकदीर का अच्छाई और बुराई। हम लोग सब शुरू से जो बोल के आया अल्लाह का ऊपर ईमान लाया, मैं मान लिया मैं मुसलमान है, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया। और मलाइकतिही फरिश्ते के ऊपर भी ईमान लाया, क्योंकि फरिश्ते के साथ मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आसानी से ईमान ला लिया। और कुतुबिही, मैं किताब के ऊपर भी ईमान लाया। मैं कुरान पढ़ता हूँ नहीं पढ़ता हूँ मुश्किल नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कुरान सही है। और रसूलिही, मैं रसूल के ऊपर भी ईमान लाया, क्योंकि अभी रसूल नहीं है मेरे को मारने के लिए, रसूल नहीं है मेरे को डांटने के लिए। ये सब चीज के ऊपर ईमान लाया। वल क़दरि खैरिही, ये तकदीर का अच्छाई और बुराई का ऊपर ईमान लाना हमारे लिए मुश्किल है। हमारे लिए ये चीज थोड़ा मुश्किल है। वशर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, और तकदीर का अच्छाई और बुराई, और ये हम लोग को अल्लाह का सामने खड़ा होना पड़ेगा कब, मौत के बाद। और बासी बअदल मौत, हमारा मौत के बाद अल्लाह का सामने हमारा हिसाब देना पड़ेगा। ये चीज के ऊपर हम लोग ईमान लाता है। ये सब चीज में खाली यही हम लोग तकदीर के ऊपर विश्वास करना, यही हमारे लिए मुश्किल है।
लेकिन हम लोग को ये तकदीर के ऊपर विश्वास करना ही चाहिए, तब मैं ईमान वाला हो सकता है, तब मैं ईमान वाला हो सकता है। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाता है कि इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। असली मोमिन वो लोग हैं जो लोग अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान लाता है और उसमें कोई डाउट नहीं रखता, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। जैसा हम लोग तो अभी का टाइम में, अभी का वक्त में, अभी वक्त बहुत खराब वक्त है, ये हमारे लिए, हम लोग जो ये आखिरी उम्मत है, हमारे लिए ये बहुत खराब वक्त है। हम लोग अभी बहुत एग्जामिनेशन में है। जैसे हमारा बच्चा लोग, हम लोग जब मुसलमान का घर में पैदा हुआ, हम लोग ईद के टाइम में ईद करता है, बकरीद के टाइम में बकरीद करता है, लेकिन हमारा दोस्त लोगों के साथ मिल के हम लोग हिंदू लोगों का पूजा में जाता है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च में जाता है और बुद्धिस्ट लोगों का प्रोग्राम में जाता है। जिसके पास जैसा दोस्त है हम लोग उसके पास चल के जाता है क्या नहीं? यही हमारा ईमान है। हमारा ईमान इतना तक। और क्या बोल रहा है, उसके ऊपर डाउट में ना पड़े, अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान लाके उसके ऊपर डाउट नहीं करने का। इसके बाद बोल रहा है अपना जान और माल देके अल्लाह का राह में जिहाद करने का, अल्लाह का राह में जिहाद करने का। और अभी वैसा वक्त नहीं है, पुराना जमाना में जिहाद का होता था, लड़ाई होता था। ये अभी का टाइम में ऐसा नहीं है। अभी का टाइम पूरा सिस्टम की वाइज हो गया, इंटरनेट का जरिया हो गया। अभी का जितना लड़ाई है पूरा ठंडा दिमाग वाला लड़ाई है। अभी क्या लेके, तलवार लेके, घोड़ा लेके लड़ाई वाला नहीं है। इसलिए जिहाद सबसे पहले, जिहाद कौन सा है मालूम है? सबसे पहले जिहाद है अपना नफ्स के साथ जिहाद करना, अपना नफ्स को बुराई से बचा के रखना, वही सबसे बेहतर जिहाद। अभी का वक्त के लिए हम लोग को यही बचा के रखने का, मैं जो गलत काम मेरा दिमाग में आया उसमें से मैं दुआ पढ़ के अल्लाह के पास मांग के इस्तिग़फ़ार पढ़ के उसमें से फारिग हो जाना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। वही मेरे लिए सबसे बड़ा जिहाद है। ये हम लोग ईमान लाता है, हम लोग मोमिन बोलता है, लेकिन हम लोग गुनाह करने के लिए हम लोग को कुछ नहीं पता। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हदीस में आया कि अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन आदमी जो मोमिन है, जो जिसके ऊपर पास खास ईमान है, जिसके ऊपर तगड़ा ईमान है, वो आदमी जब गुनाह करता है, वो आदमी गुनाह का बारे में इतना खौफ में रहता है कि मैं एक पहाड़ का नीचे बैठा हुआ है, मेरा पीछे एक बड़ा पहाड़ है, कभी भी ये मेरा ऊपर गिर सकता है। इतना खौफ में रहता है कौन? मोमिन आदमी। जो आदमी ईमान लाया, ये मैं जो बोला, अल्लाह, रसूल, किताब, फरिश्तों, अपना तकदीर और आखिरत, ये सब के ऊपर जिसने ईमान लाया, वो आदमी गुनाह का बारे में ऐसा सोचता है कि मेरा पीछे एक पहाड़ है, कभी भी ये मेरा ऊपर गिर सकता है। जैसा खौफ में रहता है, जैसा डर अभी मेरा ऊपर पहाड़ गिरेगा, ये डर जैसा मेरा अंदर है, गुनाह का बारे में मेरे को ऐसे ही डर होना चाहिए मोमिन आदमी के। लेकिन जो आदमी गुनाह वाला आदमी है, पापी आदमी है, वो आदमी गुनाह को क्या समझता है? अपना शरीर में जब मक्खी बैठता है, हम लोग क्या करता है? उसको फू दे के उड़ा देता है। ये पाप करने वाला आदमी, गुनाहगार आदमी का पास सामने गुनाह ऐसा हल्का चीज है। सबसे पहले अभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। क्या बोला? कि तुम लोग अल्लाह का जो दिया हुआ रज्जू है, जो रस्सी है, सब आदमी इकट्ठा होके पकड़ के रखो, कोई अलग नहीं हो जाओ। ये आयत में क्यों बोला, आप लोग को अच्छे से समझ में आया
अभी का दिन का हालत, दुनिया का हालत हम लोग को ये अल्लाह का रुजू से क्या करता है, फारिग करता है। पिछले हफ्ता भी मैं ये हदीस बताया था कि वो आदमी मोमिन कभी भी नहीं हो सकता है, वो आदमी पक्का मोमिन कभी भी नहीं हो सकता है जो आदमी अपने के लिए जो अच्छा सोचता है, अपना दूसरा मुसलमान भाई के लिए भी सेम अच्छा सोचने वाला वही मोमिन है, वही मोमिन है। इसलिए मेरे भाई, हम लोग आज का ये छोटा सा बात से हम लोग को ये मालूम हुआ कि ईमान हम लोग को कितना जरूरी है और कौन सा चीज के ऊपर ईमान लाना है। दुनिया में अल्लाह का दिया हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिया हुआ हर एक चीज के ऊपर विश्वास रखना वही ईमान है, वही ईमान है। इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह के पास दुनिया का हालत भी सही हो जाए और हमारा ईमान, अल्लाह हम लोगों को दुनिया से जब हमारा वक्त खत्म हो जाएगा, अल्लाह हम सबको ईमान के साथ दुनिया से विदा लेने का तौफीक अता फरमाए। ये हमारा सबसे बड़ा दरख्वास्त है अल्लाह के पास, या रब अब हम लोग को दुनिया से विदा लेने का पहले ईमानदार बना के दुनिया से विदा करो। ये हर एक आदमी का दिल का ख्वाहिश होना चाहिए मेरे भाई। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आखिरत बोल के है क्या, आखिरत बोल के है क्या। आप तो ये तो यकीन करता है कि आप मैं मेरा बाप जब मर गया, मैं मेरा बाप को किधर रख के आया, कब्र में रख के आया, है क्या नहीं, कब्र में रख के आया। वही कब्र में जो मेरा बाप थोड़ा गर्मी में बिना पंखा से नहीं सो पाता था, बिना पंखा से नहीं सो पाता था, बिना लाइट से वक्त नहीं गुजार पाता था, वही बाप अभी कब्र के अंदर बिना मैट्रेस से, बिना पिलो से हम लोग कैसे छोड़ के आया। कौन आदमी है कि किसका बाप को, किसका दादा को ऐसा पिलो और मैट्रेस दे के कब्र में छोड़ के आता है? नहीं, ये अल्लाह का हुक्म है। जैसा अल्लाह का हुक्म है हम लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाता है। इसके बाद शुरू हो जाता है हमारा असली जिंदगी। इसलिए अल्लाह हम सबको ये दुनिया वाला फितना से हम सबको हिफाजत करे। ये दुनिया का जितना मुसीबत है, वाला मुसीबत है, वो सब से अल्लाह हम सबको हिफाजत करे और हर एक मुसलमान भाई को एक साथ हर एक मुसीबत का मुकाबला करने का तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।